شروع ریکارڈنگ شروع ہو گئی. اوکے. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. تو کل ہم لوگ 15 16 17 نہیں 16 تک کمپلیٹ کریں. اب 17 اور 18. 18 کرنا ہے. 17 تو 17 اور 18 سے شروع. چلیے کوئی 17 18 پڑھیے اور اپنے حساب سے تھوڑا سا اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Their example is that of one who kindled a fire, but when it illuminated what was around him, Allah took away their light and left them in darkness, so they could not see. مطلب ان کا وہی ایگزامپل جو مطلب یہ منافقوں کا یہ ہے کہ جو آگ لگانے کی کوشش کریں اور اگر وہ جب آگ لگنے کے بعد بھی اس کے آزے بازو اللہ تعالیٰ وہاں سے روشنی کھینچ لیتے ہیں اور ان کو پھر اندھیرے میں ڈال دیتے ہیں. Deaf, dumb and blind, so they will not return to the right path. مطلب ان کو بالکل ہی مطلب ایسا ہو جاتے ہیں یہ لوگ اندھے بہرے اور گنگے کہ مطلب یہ واپس آ ہی نہ سکتے صراط المستقیم پہ. صحیح. ویری گڈ ویری گڈ ماشاء اللہ ویری گڈ. اگر مطلب وہ جو ورڈس اللہ تعالیٰ بولے ڈیف ڈمب اور بلائنڈ اندھے گنگے بہرے اور وہی راستے پہ بھٹکتے ہوئے مر جاتے کبھی صراط المستقیم پہ نہیں آتے. کتنی افسوس کہ مطلب وہ لوگ کتنے بند ہو جاتے ان کا مائنڈ ان کی آنکھاں اس کو پرسیو نہیں کر سکتے سوچ نہیں سکتے. اللہ بچائے ہم لوگوں کو ایسے انسان بننے سے. آمین. کہ آپ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کتنا قرآن سنو دل میں نہیں اتر رہا آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے اور لائف میں ویسٹ ہے. آپ کے پرسنل لیول پہ آپ بہت اچھے ہوں گے انسان ہوں گے یعنی تو بزنس وائز آپ اچھے ہوں گے مگر آپ اس حد تک کمپلیٹلی یوز لیس ہینڈی کیپ بولتے نا کہ ڈیف بلائنڈ کو ہینڈی کیپ بولتے. مطلب انسان اس طریقے سے ہینڈی کیپ ہو گیا کہ رحم کے قابل ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. مطلب کتنی افسوس کی بات ہے کہ یہ سٹیج تک کوئی انسان چلے جاتا کہ اس کو کتنا سمجھا بھی وہ نہ گناہ چھوڑ سکتا نہ وہ شرک کو چھوڑ سکتا نہ وہ طریقے کو چھوڑ سکتا نہ وہ لوگوں کو چھوڑ سکتا. مطلب کتنی کوشش اللہ تعالیٰ کرے ہوں گے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ خود بیزار ہو کے سمیون بکمن امیون بول رہے ڈیف ڈم اینڈ بلائنڈ بول رہے. مطلب کتنی ضدی ہوں گا یہ آدمی. اور اب ہم لوگ کئی لوگ کو دیکھتے تھوڑے اپنے آس پاس کے مطلب اتنا افسوس ہوتا ہے کہ یار اتنا ہوا کتنا سمجھائے دس سے مس نہیں ہوتا اپنی انا میں. ورڈز کا جو ڈسکرپشن سوچے تو خیر اب دوسرے چلیے کمنگ بیک ٹو آیت. اب یہاں سے ذرا سورہ بقرہ تھوڑا سا ڈفرینٹ رہتا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایگزامپلس یوز کرتے پیرابلس یوز کرتے تو اور وہ پیرابلس کتنے سمپل دکھتے مگر ایکچولی اس میں میننگ پروفاؤنڈ رہتا. اور کیونکہ آڈینس اس کے جو ہے ہائیلی ایجوکیٹڈ بھی رہ سکتے اور ان ایجوکیٹڈ ایک دم لوور لیول آف دی سوسائٹی ان ایجوکیٹڈ ایک دم فرسٹ کلاس فیل یا سیکنڈ کلاس یا کمپلیٹلی انگوٹھا چھاپ بھی لوگ ہیں جو مسلمان ہیں یا اور قرآن پڑھنا چاہتے تو اس کو ایک ہائی لیول کی فلاسفیکل کانسیپٹ کی کتاب نہیں بناتے. اللہ تعالیٰ اس کو سمپل بتاتے اور کئی بار ایک کانسیپٹ کسی سے سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو کیا کرتے اس کو ایک ایگزامپل دیتے سوچ تو ایسا ہے سوچ تیرے ساتھ ایسا ہو رہا سوچ روڈ پہ جا رہا تو تیرے کو ایسا ہے تو اپن سمجھاتے نا. تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ ایک پیرابل دیتے ایک کہانی بتاتے یعنی تو ایک ایسا ہار سا سوچو تو تاکہ وہ بات انسان کے اندر اترے رادر کی ڈائریکٹ کانسیپٹ بولے کہ ایسا نہیں ایسا کرو چوری مت کرو فار ایگزامپل اس کے بدلے میں تمہیں کوئی محاورہ ایک ایگزامپل ایک پیرابل بتائے تاکہ وہ بات شاید اس طریقے سے ہاں اچھا ایسا آپ سمجھ میں آیا
बल्कि दिल को लगे, इसके लिए वो पैराबल्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो पैराबल समझना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा सिंपल तो रहते दिखने में, अपने डे टू डे लाइफ में रहते, कोई कॉम्प्लेक्स सिनारियो चांद के ऊपर गए थे गिरे थे वैसे अजीब व खायर नहीं रहते। अपने डे टू डे लाइफ में जो देखते, खुसूसन जो अरब के ज़माने में जो लोग ट्रैवल करते, डेजर्ट पे रहते। मगर उससे पहले, ये पैराबल एक्सप्लेन करने से पहले मेरे को एक अजीब ये दिखता है कि अल्लाह ताला कितनी कोशिश कर रहा है इंसान को उसकी बात समझाने की, कि एक खाली कुरान भेजना, एक पैगंबर भेजना, फिर उसके बाद में बात करने के लहजे में इतनी फिक्र और जो इतना क्या बोलते हैं कि डेस्परेटनेस, कि एक्चुअली अल्लाह डजंट नीड अस, वी ऑल नीड अल्लाह, राइट? मतलब अल्लाह को हमसे कुछ फायदा नहीं मिलने वाला। हम जहन्नुम में जाओ, जन्नत में जाओ, पैसा बनाओ ना, तो अल्लाह ताला को फर्क इच नहीं पड़ता। उसके बावजूद भी एक तरीके का डेस्परेटनेस एफर्ट में दिखता कि अल्लाह ताला आखिरी कोशिश कर रहा कि ऐसा नहीं, ऐसा समझाएंगे, ऐसा। तो मैं जब आपको कुरान समझा रहा हूँ तो आप लिटरली ऐसा समझो कि अल्लाह ताला आपसे डायरेक्टली 5 लोग से मुखातिब है थ्रू सम माइक या स्पीकर, और आपको पर्सनली जुबैर सुन ले, शोएब सुन ले, मुदस्सिर ऐसा नहीं, ऐसा सुन ले। तो क्या जरूरत है अल्लाह को एक्चुअली? अब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कोई बोला वोट डाल भाई, नहीं डालता, मर। सऊदी में है, लॉकडाउन है, न को निकल, बाहर गया तो तेरे को कर्फ्यू में बाहर न को निकल, जो है तेरे कोरोना हुआ तो बीमार हो जाता, नहीं मैं बाहर जाता रोड पे। एक्चुअली अगर जो बैठा हुआ है उस्ताद मालिक, उसको एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता, मगर उसकी फिक्र इतनी है कि तेरे को कोरोना लग जाएगा, अंदर जा अंदर जा अंदर जा। हालांकि एक्चुअली लिटरली इसको फर्क नहीं पड़ता, तुम जो मरो, तुम्हारे जैसे कितने की इमिग्रेंट्स आते जाते कंट्री में, फर्क नहीं पड़ता। मगर मेरे को तारीफ काबिल ये दिखती कि जो अल्लाह ताला की फिक्र, और एक्चुअली वो एक तरीके की मोहब्बत है कि ये मेरा बंदा शुएब, मेरा बंदा जुबैर इतने साल जिया, इन्हें जहन्नुम की आग में नहीं जाना। फिर जहन्नुम बनाएगा ही अल्लाह ताला, वो कमीने से कमीने लोगों के लिए है, मगर मेरा शोएब नहीं जाना, मेरा जुबैर नहीं जाना। तो अल्लाह ताला अलग अलग तरीके से कन्विंस कर रहे, कभी इस तरीके से कन्विंस करे, कभी ये कहानी से कन्विंस करे, कभी ये पॉइंट से कन्विंस करे, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, जिंदगी को तबाह नहीं करना, अपनी जिंदगी जो जमीन के ऊपर 60-70 साल की जिंदगी, उसमें समझ जा, तो मेरे बारे में जान ले, मेरे हुकूमत को फॉलो कर ले, तेरा फायदा है, तेरा फायदा। तो वो हम लोग अप्रिशिएट करना, और अल्लाह जब इतना हमारे लिए तड़प, उससे क्या होता, हमको अल्लाह से मोहब्बत आना कि मेरा अल्लाह हालांकि मेरे को पैदा करके छोड़ दे सकता था, जब मर जब मैं देखेंगे जिंदगी। वो कल मैं आपको एग्जाम्पल दिया कि वो एक आदमी चेयर पे बैठा हुआ और उस स्लेव को ने गार्डन में बोला कि बस मेरा रूल ये है कि वो बाजू के गार्डन में जंप नहीं करना, और शाम तक पूरे पॉइंट ऑफ नोटिस कर लिया कि कितने बार उन्हें गया, और बाद में उत्ते कोड़ले पड़ रहे उसको। हालांकि शुरू में नहीं बोला उसको फर्स्ट टाइम पे, ताकि वो बंदा जो अम्मा इतना जबरदस्त कोड़ले बने तो मैं नहीं जला था, मगर जानबूझ के जो गुनहगारों के लिए, एकदम बदतरीन इंसानों के लिए एग्जाम्पल वो है। मगर वो एग्जाम्पल हम लोगों के लिए नहीं है, उम्मत मुस्तफ़ा के लिए नहीं है। उम्मत मोहम्मदिया के लिए क्या है कि एक बार गलती कर दिया, उन्हें पैर बाहर रखा तो बोलते मत कर, मत कर, तेरे को मैं परमिशन दिया, शाम तक तेरा हिसाब होने वाला है, शाम में मैं तेरे को कोड़े मारने वाला हूँ, ये रूल ऑलरेडी डिसाइडेड है, मत जा, क्या जरूरत है तेरे को जाने की। इस हद तक कोई मालिक कन्विंस करता अपने गुलाम को जिसको ने खरीद के रखा, मगर हालांकि हम उसके गुलाम से भी बदतर है। कंप्लीटली हमारे सांस, आंख, नाक सब उस पर डिपेंड। ऑक्सीजन छोड़ो, अपने को हार्ट मारना जो हर सेकंड को मार रहा, फ्रॉम द मोमेंट वी आर बॉर्न, 40 साल में 365 डेज में अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें 1 सेकंड से, कितने सेकंड्स में उतने बार हमारा हार्ट मारा हो, उसकी परमिशन पे उन्हें। अगर वो बैटरी क्या है, उसकी बैटरी दिखती नहीं हार्ट के अंदर, बगैर बैटरी के वो काम करते जा रहा, हम कितने उस पर डिपेंडेंट है। उसके बावजूद भी अल्लाह ताला लिटरली डेस्परेट है, और लिटरली इसके लिए हर टाइप की आयत, ताकि तू ये स्टाइल से समझता होगा। अच्छा, कल तेरे को समझ में नहीं आई बात, 1 साल पहले समझ में नहीं, अब मैं फिर बोल के देखो, तो वो अल्लाह का समझ के हम लोग क्या बोलना चाहिए, अल्लाह तेरे मैसेज को एज अ होल एक्सेप्ट करें, अल्लाह ताला हम तेरे कुरान का एक्सेप्ट करें, अल्लाह ताला हम जो है तेरी बात हम समझ गए, अल्लाह हम तेरी नाफरमानी नहीं करते, और हम तेरा गुस्सा हमारे पे नहीं लेके आते, और तो हमारे लिए जो जन्नत बनाया जहाँ से हम लोग जन्नत पैदा, हम जन्नत को वापस जाते, और दिल में ये खुशी लेके सोना रात में कि अल्लाह मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि मैं ये गलत काम ना करूं, मैं गलत रास्ते पे ना करूं, जिंदगी को कामयाब बनाऊं। वो पैशन
दोबारा जो है मैं बोल सकते हालांकि 17 सेशंस हो गए कुरान के, यहाँ पर लोग अल्हम्दुलिल्लाह इतने आए थे, पढ़ चुके, और वो पैशन अपने अंदर वो फील करना कि अल्लाह ताला किस हद तक कोशिश कर रहा कि कहाँ कहाँ से ऐसा नहीं हो रहा, तेरे को ऑफिस में नहीं हो रहा, माँ बाप के जरिए उतना टाइम नहीं मिल सका, तो इसके जरिए, दोस्तों के जरिए, कुरान सर्कल के जरिए, जूम मीटिंग के जरिए, कि अल्लाह ताला का जो इंतजाम है, जो तुम्हारे को चूज करे, जो दूसरों को एक्चुअली नहीं दे, यू शुड फील सो मच elated, so much satisfied कि वाह मेरा अल्लाह मेरे लिए इतनी कोशिश करा, I will not let you down on anything, I will take the message in your heart. तो चलिए उस तो वो कॉन्सेप्ट से अपने अंदर एक जोश आना चाहिए। तो अब यहाँ पे अल्लाह ताला मुहावरे से बोले, हालांकि बता दिए ये ऐसा बनी इसराइल के लोग ऐसा करें नबी के ज़माने में, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं चलो मैं तुम्हारे को एक एग्जाम्पल की बात, एक छोटी कहानी बोलते हैं, जैसे छोटे बच्चों को पंचतंत्र के कहानियाँ बोल के बचपन में सुनते थे, दूरदर्शन पे भी आ रहा था छोटे, जब कोई एक पॉइंट समझाना कि भाई हिरिस की वजह से जो है इंसान तबाह होता, तो वो पॉइंट तो सीधा बोले तो बोरिंग दिखता, लोगों को समझ में नहीं आता, तो पंचतंत्र के कहानियाँ बोल के एक तरीके की बुक थी पुराने ज़माने में, कैसा रहती तो जानवर पर स्टोरी रहती, जैसा कि भाई एक क्रोकोडाइल थी और एक बंदर थी, दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी, दोनों इन्हें उसको फ्रूट था, क्रोकोडाइल खाता था, इन्हें आइलैंड पे रहता था, आखिर में जो है क्रोकोडाइल की बीवी बोली मेरे को मंकी का हाथ खाना है, मैंने बोला अरे मेरा दोस्त है मैं कैसा करूँ ऐसा, बोल तो नहीं कैसा भी करके लेके आ, तो इन्हें जाता चल मेरे ऊपर आ मैं तेरे को लेके आता समुद्र के बीच में, चंदू बोलते इसको डाउट आ जाता, तो उन्हें जो है पहचान लेता फला, तो एक्चुअली लिटरली में कभी कोई मंकी क्रोकोडाइल से बात करा नहीं, बात करा, तो क्यों वैसा बोला जाता था कि बच्चे जो है ये टाइप की स्टोरीज, एनिमल्स की स्टोरीज से एक्साइट होते और जो है उससे जो है उनका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा आ जाता है, स्टोरी 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 बोलते बच्चे, हाँ 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 स्टोरी सुनना है, और स्टोरी के जरिए इंसान को वो बच्चों को एक अच्छी बात उनके दिमाग में बिठाई जाती है। उसी तरीके से हम जैसे इंसान जो माशाल्लाह इंजीनियरिंग करे हुए, डॉक्टर बने हुए, हाईली एजुकेटेड है, तो हमारे माइंड में कुछ एक बात का गहराई उतरना, उसका दर्द महसूस होना, बल्कि एक कहानी कि जैसा एक एग्जाम्पल दिया गया, और ये आपको आगे कई जगह मिलते हैं, थोड़े सीधा बहुत ही सिंपल दिखते हैं, मगर उसके मीनिंग कभी कभी सर अलग रहते हैं। तो यहाँ पे एक स्टोरी क्या है, वो इंसान जो कभी जंगल में जा रहा और काम से जा, एकदम रात का टाइम हो गया, तो उन्हें क्या करा, अब रात में तो होटल तो है ही नहीं, एग्जिट लेके कहीं होटल रुक नहीं सकता, तो पहले के ज़माने में क्या करते, चलो फिर रात में करीब सो गए, जंगल में रुक गए, अब जंगल में क्या है रात के टाइम में लाइट आता है नहीं, तो लोग क्या करते, वाइल्ड एनिमल्स के साथ बहुत खतरा रहता, खा जाते शेर, तो लोग क्या करते रात आग लगाने से क्या होता, पहले फिर वाइल्ड एनिमल्स नहीं आते, शेर वेर सब, तो क्या है कि आग से बहुत प्रॉब्लम, आग से बहुत डरते, तो आग जब तक सुबह तक जलाते रहते, उससे क्या है रात तमाम सुकून से गुजर जाता, और रात में सर्दी होती रेगिस्तान हो या जंगलों में वगैरह, तो सर्दी से भी कई बार मर जाते, तो सर्दी से बचने के लिए भी गर्मी का सोर्स जो है आग होता, तो आग मल्टीपर्पज करती, तो वो आग से क्या होता, अगर तुम लेटे हुए है और छोटा वो आ रहा बिच्छू स्कॉर्पियन, तो लाइट वो एक लाइट का जरिया जिसकी वजह से अरे बिच्छू को हटा दो, राइट, तो आपको सोर्स ऑफ लाइट भी है और तुम्हारे को सेफ्टी भी है उससे, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और कई बार रातों में जल्दी जल्दी मगरिब होने से पहले वो लकड़ियाँ जमा लेना, और वो ज़माने में लाइटर आती है, वो मैच स्टिक नहीं रहती, तो क्या करते हो पहले के ज़माने में पत्थर से पत्थर को घस के चिंगारी लेके आके, वो चिंगारी को छोटे से पेपर के ऊपर लेते, तो सूखे लकड़ियों को वो थोड़ी उसको बारीक तरीके से लेना पड़ता, ज़्यादा हवा भी नहीं पड़ता चिंगारी, फिर वो चिंगारी को लेकर बड़े लकड़ियों में डालते वो तरीके से आग तक, तो वो भी लिटरली एक आर्ट है, वो ह्यूमन मैनकाइंड में हिस्ट्री के हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट माना जाता, क्रिएशन ऑफ फायर एंड इन्वेंशन ऑफ व्हील बोलते हैं, अगर आप सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखा गया, तो आज तो खैर बहुत ईजी है, मगर आप इस वक्त में और आज भी जंगल में आप चले गए बीच में शिकार वगैरह के लिए, तो आप बेसिक नेसेसिटी के लेवल पे आपको चल जाना पड़ता है। तो पॉइंट ये है, बोलना ही कर रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल था, फायर लाइटिंग अ फायर इज नॉट ईजी, क्योंकि एक बार वो कर दिया तो आपके फायदे खुद अच्छे, क्या फायदे हो जाते हैं, गर्मी फौरन आ जाती है, आपकी सर्दी से बच जाते, और आपको चीज़ा चौ तरफ दिखना शुरू करते, चीज़ा चौ तरफ दिखे बोले तो आपको पता चलता वहाँ पे इतने कुत्ते इंतजार कर रहे, लोमड़ी इंतजार कर रही, शेर रेडी था कि बैठा हुआ था कि जरा ही लेट से मैं इसको अटैक करूँ क्या बोल के, तो ये सब खतरे आपको दिख जाते, और आपको पता चल जाता कि रास्ता कितनी दूर है, आप कहाँ हैं, काम जंगल के किस बीच में है, ज़मीन पे है, थोड़ा हाइट पे है, जो भी हो। फायदा आग का मतलब क्या है बोले तो आग एक्चुअली नूर की निशानी है, कुरान में कई जगह नूर बोला गया, लाइट,
क्योंकि लाइट जो है आपको दिन में अगर पूरी जिंदगी है ज़मीन पे रात ही रही तो आपको कितनी तकलीफ होती। तो अल्लाह ताला फ्री में आपको एक लाइट का सोर्स है, उसको बोलते हैं सन, जिसकी वजह से दिन में सोचो आप रात में इलेक्ट्रिसिटी चलाए तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रही है, सोचो दिन में भी अंधेरा रहता तो आपको कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होती और ज़िंदगी कितनी बेकार हो जाती थी। यहाँ से वहाँ तक जाना है, गाड़ी चलाना है तो अंधेरे में चलाना, लाइटों में चलाना, लाइट हर जगह नहीं रहती, हाईवे तक रहती, बड़े सिटी में रहती, बड़े सिटी से दूसरे सिटी जा रहे तो फिर आपको आपकी गाड़ी की लाइट रहना पड़ता। तो दिन तमाम अगर लाइट नहीं रही सूरज की फ्री तो कितनी लाइफ जो है टॉर्चर हो जाती थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको लाइट दिए। तो उसी तरीके से जैसा सन आपकी ज़िंदगी में लाइट इंपॉर्टेंट है, सन की वजह से फोटोसिंथेसिस होता, सीजन्स बनते, जो है झाड़ जो है अपना खाना बनाता जिसमें से आपको फ्रूट्स मिलते, चाहे वो हर तरीके की चावल हो या हरियाली हो। सन और उसका प्रोसेस लाइट देना, रोशनी देने का कई चीज़ों को करता। तो उस तरीके से वो पर्पज दिन में सन देता आपको, रात पे आप लाइट के जरिए करते हैं। तो लाइट इज काइंड ऑफ नोन एज अ गाइडेंस। मतलब लाइट आ गई तो भाई चलो हम गाड़ी लेके निकल सकते हैं, राइट, वो उसका पैराबल है, वो उसका मीनिंग है। तो ये बंदा जो है बेचारा मेहनत करा, थोड़ा सा लकी भी हो गया और जो है अच्छी खासी आग लगा लिया। आग से अब उन्हें एक्चुअली सुबह तक एंजॉय कर सकता था, बेफिक्री से सो सकता था गर्मी में, मगर उन्हें क्या करा, डाउट करना शुरू करा। तो मतलब क्या है, उन्हें इस टाइप का इंसान था कि मदीने में रह रहा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो उसको ज़रा अच्छी दी थी बात, तो उन्हें थोड़ा मुसलमान बन गए। बस 2-3 घंटे, मतलब थोड़े साल जो है उन्हें जो है हिदायत पे रहा, मुसलमान बन गया और जो है लाइट का फ़ायदा आया, जिसके वजह से उसको जो है ख़तरे दिख गए, उसको जहन्नुम क्या है समझ में आ गई, जन्नत क्या है समझ में आ गई, क़ब्र का अज़ाब क्या समझ में, तो उन्हें फ़ायदा पाया। जिस तरीके से आग जला के उसको फ़ायदे मिलते ना जानवरों से बचने के, वैसे उसको फ़ायदे मिले। मगर उसके बाद में उन्होंने काम करा, कैसे, ऊपर देखो आप जो आए थे अपन पढ़े कल परसों में कि उन्हें शक करा, उन्हें 2 बोट पे पैर रखा, दोनों ग्रुपों के साथ फ़ायदा लेंगे, मुसलमानों के साथ भी रहेंगे, मुसलमानों के साथ भी पैसा हासिल करेंगे, जगह दीजिए तो ये पुराने ग्रुप के साथ भी मिला के रख लेना, कल के दिन इस्लाम डाउन चले गया तो मेरी भी बात लग जाएंगी, जब एक बैकअप ऑप्शन रखेंगे, बोले काफिरों के साथ भी मिलना, काफिर बोल रहे तो हमारे साथ मिलना तो हमारा क्या फ़ायदा है, हमारी जासूसी कर तो ठीक है, मैं जासूसी कर तो ताकि मैं तेरे साथ भी मिल के रहता हूँ। क्यों उन्हें एक रास्ता क्यों नहीं चूज करा इस्लाम का, डाउट में था, थोड़ा सा डाउट आ गया, थोड़ा बहुत फायदा आ गया था, अब उसका कॉन्फिडेंस और उसकी हिदायत बढ़ना चाहिए था। कभी कभी हिदायत एक चिंगारी की तरह शुरू होती है, एक थॉट प्रोसेस, कई मुस्लिम्स को देखो तो एक सोच से एकदम वो लोग बदलते और वो सोच को लेके जाके बहुत आगे तक लेते, पर कई लोग सोच से थोड़ा फायदा उठा के सोच को छोड़ देते। और हालांकि इस्लाम में अच्छी चीज़ दिखती, जैसा मंसूर भाई बोले उनके ऑफिस में बंदा है, उसको इस्लाम पसंद आया, उसको जो है रोजे भी रहना शुरू करा, उसको बात अच्छी आ रही, पर उसके आगे नहीं बढ़ रहा, उतनी चिंगारी ले लेके, चिंगारी को शोले, आग के शोले नहीं बना सका उन्हें, वहीं पे अटक गया, इन्हें भी वही अटक गया, उसको उतना ज्यादा कंप्लीट यकीन इस्लाम पे नहीं था। हाँ, इस्लाम एक अच्छी रिलीजन है, एक अच्छा ऑप्शन है, जो कि ठीक दिख रहा, और उस लेवल का यकीन नहीं, थोड़ा सा डाउट था उन्हें, दो माइंड्स में था उन्हें। तो उसके बाद में उसके उसी टाइम पे फिर अपनी दुनियावी मोहब्बत भी देखने लग गया, ये दूसरा 2 ग्रुप है, ये ग्रुप के साथ हार गए तो क्या दूसरा भी बैकअप रख दो, उनके साथ भी दोस्ती रख दो, पूरी तरीके से इस्लाम को उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सका और बड़ी सहाजी में नहीं बन सका उन्हें। तो वैसा इंसान फिर क्या करता है, ऐसे हरकत करे तो अल्लाह ताला क्या कर देते, हिदायत छीन देते। तो मतलब क्या हो जाता, ये एग्जाम्पल में क्या हो गया, अल्लाह टू कवे देयर लाइफ, अल्लाह की हिदायत छीन दी। क्यों? क्योंकि इन्हें हरकत वैसे करा, 2 वोट्स में रहा, मेन चीज क्या है, डाउट, इस्लाम के ऊपर उसको यकीन नहीं था, और बगैर यकीन करा हुआ अमल अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। ये बहुत बड़ा गोल्डन रूल याद करिए, ये कई हदीस और कई सहाबों का कौल है। आप खैरात भी कर रहे हैं, आप लोगों को दीन का रास्ता भी सिखा रहे, उसको सा भी अमल कर रहे, आप नमाज भी पढ़े, कंप्लीटली यकीन नहीं रहे तो अल्लाह ताला वो इबादत, वो नेक कबूल नहीं करता। उसका एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई आपको आके बोला भाई ये अर्थक्वेक हुआ हैदराबाद में, फला लोग मर गए, और आप एक्चुअली देना नहीं चाह रहे और पैसे आप देना नहीं चाह रहे, पर क्योंकि आप समझ रहे हाँ भाई ठीक है जन्नत मिलती, मगर कौन देखा होंगी, उसके लिए तैयारी कर लेना चाहिए था, अच्छी चीज़ है, मगर
उतना यकीन नहीं है तो आप डवा डोल बोल रहे नहीं यार वो देखेंगे अपन वो क्या है ना लोग से खा लेते झूठे बोल रहे थे अपने को कौन है अगर बोल तो उन्होंने बोला नहीं 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 मेरे सगे भाई है सगे चचेरे भाई है हम लोग फलाना है तो आपका उन्हें वो भी दरवाजा ऑप्शन बंद कर दिया ये नहीं पे मजबूर कर दिया तो अरे अब तुम लोगों के सामने बात भी निकल गई और अब नहीं दिया तो उन्हें भी दिया इन्हें भी दिया तुम तो पूछ रहा उन्हें मैं नहीं दिया तो फिर भी बेइज्जती होती तो उन्हें जरा यकीन उतना नहीं है उसका मगर अब प्रेशराइज में आके उन्हें ठीक है बोल के दीजिए अल्लाह ताला के ऐसा खैरात अल्लाह ताला की अल्लाह ताला बोले कंप्लीट कन्विक्शन के साथ होना चाहिए रियल लव भी रहना चाहिए और कंप्लीट यकीन भी होना चाहिए फॉर एग्जांपल अब आप देखो आपका दोस्त है या औलाद है आप उसको पाल पोस के बड़े करें और आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपकी औलाद आपको जो है टेक केयर करना चाहिए क्योंकि आप कमज़ोर हो जाते हैं फिजिकली नीड रहती है आपको तो आपके हाथ पैर नहीं चलते परवाह मगर आपको पता चला आपका बेटा कर रहा और उसको एक्टी को कर रहा बोलते नहीं अरे दुनिया को यार ओवर के करना तो आपका बाप शायद हेल्प ले लेगा और उसको छुट्टी बात उतना बाप नहीं दिखता उसको अच्छा नहीं दिखता कहीं को कन्विक्शन नहीं है लव नहीं है तो करे तो एक्टी को कर दे रहा ठीक है ला के रख दे रहा बात बराबर नहीं कर रहा चीनी में है ऐसा कर दे रहा तो उनका दिल सेटिस्फाइड होता नहीं होता सेम आपके साथ भी ऐसी हुआ और आपकी औलाद भी ऐसी करी आपके साथ मगर एक व्यक्ति को इस जिम्मेदारी से नहीं कर रही यानी तो जमाना बोलता बोलकर तो आपके साथ जब वैसा कर रहे तो आपको अच्छा दिखता क्या ऑनेस्टी नहीं है वो दिल साफ नहीं है यार ऐसी कर रहा उन्हें आप अपने दोस्त के साथ बुढ़े जब कर रहा मेरा बेटा मगर मैं चाहता तो उसका बाप हूँ एक्चुअली सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है उन्हें सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता उसकी बच्चे छूना मगर अब वो क्या है कि हम लोग क्या बोलते कि खानदान वाले ताना मारे उसको क्या है जा तेरे बुढ़े बाप का छोड़ दे रहा पैदल जा रहा उसको नहीं कर रहा और उसको कन्विक्शन नहीं है अब उसको मजा नहीं आता अब वो दिल से मैं दुआ भी नहीं देता तुम इस दिल से दुआ नहीं देते तो क्या अल्लाह ताला कबूल करेंगे अल्लाह ताला की नेकियां भी जो है तुम ऐसी एक्टिव को लोग बोले से उसको या प्रेशराइज करे खींच के लेके गए हाँ ठीक है शुरू में कई बार ईमान थोड़ा कमजोर रहता और 5 वक्त की नमाज फॉर एग्जाम्पल नहीं होती अपने से फजर में खुसूसन मुश्किल होती ज़रा ऑफिस से थक जाते तो क्या करते कोई दोस्त आपको जो हेल्प करता फ़ोन करता या नहीं तो साथ रूममेट है तो चलो 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 बोलता वो ठीक है जैसा मैं आपको मेरी स्टोरी बताया वो पाकिस्तानी फ्रेंड को अपन शुरू में पुश कर रहे थे तो शुरू में समझ में आ जाती मगर वही जिंदगी का स्टाइल हो गया 5 साल का भी वही जिंदगी है नहीं आ रहा एक्टिव को कर रहे अब मजबूरी है जैसा फॉर एग्जांपल सऊदी में जो है टाइम होते ही जो है नमाज के टाइम होते मुतवा आके जो है दुकाना बंद करा देते अब वो दिल से करना चाह रहे वी डोंट नो नहीं तो अब वो दिल से हो न को हो रोते हैं सही बिजनेस हो रहा नहीं हो रहा नहीं मालूम हाँ वहाँ दुकान बंद करा दे यार बोल के बोल रहे तो दिल से कर रहा नहीं करा मगर मुतवा छोड़ के कराया था अब क्या मुतवा चले गया अब जो है हालत बदल गई अब आपको ऑप्शन दिया गया तो अब ऑप्शन यूज नहीं कर रहे अब आप दुकान खुले रख रहे तो मतलब आप इतने साल जब आप खुशी से नहीं करे मतलब आपसे मजबूरी से किया तो ये क्या ये सेटिस्फैक्शन से नहीं हो रहा तो ये वाली चीज जो है अल्लाह कबूल नहीं करने वाला तो आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो अगर यकीन नहीं है हाँ डेवलप हो रहा आप प्रोसेस शुरू करें ओके फाइन अल्लाह वेट करते थोड़े साल आपको टाइम देते मगर अच्छा सा टाइम हो गया उसके बाद में दिल में यकीन नहीं है इस खैरात की वजह से अल्लाह की रज़ा मिलती और अल्लाह की जन्नत मिलती और जो है उसके फ़ायदे फला हैं और ये हमारे लिए ज़रूरी है ये यकीन सर्टेनिटी आना बहुत ज़रूरी है डाउट में है ठीक है ये जो है अल्लाह ताला कबूल नहीं करते तो अब ये बंदा भी सर्टेन नहीं था सर्टेन नहीं था कैसा मालूम उसको फॉर एग्जाम्पल ये कल के दिन इस्लाम का ग्रुप हार गया तो हार गया तभी तो साथ रहना ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर माना अल्लाह को अपना खुदा माना तो जब तक तो पैसा मिला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गिफ्ट मिली तो खुश है मगर अगर वो लोग हार गए तो छोड़ देता ग्रुप को नहीं छोड़ देता तो गरीबी में भी आ गया तो हार गया भी बन गए वॉर में तो भी इस्लाम नहीं छोड़ना ना और ये लोग नहीं करते बैकअप होना बैकअप क्या है दूसरे ग्रुप को मिला के रखो वो ग्रुप विक्टोरियस हो गई तो अपन जाके उनको बोल सकते हैं कि अरे यारो असल तो हम तुम्हारे साथ ही थे वो फायदा था बोल के करे कन्विक्शन नहीं था उन्हें 2 वोट बोल के नहीं दोनों फायदे उठाना चाह रहा हूँ तो उन्हें अल्लाह जो है अल्लाह का दीन इस्लाम है और अल्लाह की मदद करना दीन की मदद करना जरूरी है नहीं समझा उन्हें तो जिसकी वजह से अल्लाह ताला ऐसे लोग क्या करते हैं पहली चीज हिदायत चली जाती क्या होता कैसा चले आती उनका जो डाउट है ना वो जो डिजीज है हार्ट में बीमारी जो आयत नंबर 9 में पढ़े थे
9 और 10 में कि अल्लाह ताला बोले उनके हार्ट के अंदर एक डिजीज है डाउट की, ये होता नहीं होता, सही है नहीं है, सिरातुल मुस्तकीम वो क्या पुल सिरात है नहीं है, वो जहन्नुम में ऐसे सांपा है क्या जो तुम्हारे को 2 टुकड़े करके मार देते, क्या ऐसा डरावनी रहता क्या, देखे तो नहीं हम। तो ये डाउट में था उन्हें, थोड़ा थोड़ा इस हद बड़ा फायदा हुआ। तो वैसे डाउट वाले को अल्लाह ताला क्या करे, उसका डाउट बढ़ा दिए, बढ़ाते बढ़ाते उन्हें इस हद तक जो है मुखबिर बन गया कि अल्लाह ताला फिर क्या करे, हिदायत छीन ली। तो क्या करे अल्लाह ताला यहाँ पे, अल्लाह टू द वेदर लाइट, मतलब एकदम पानी पड़ा और जो है 2 सेकंड में खुश आग पूरे खुश, और फिर बजाएंगे बोलते हुआ क्या, कच्ची हो गई, कच्ची लकड़ी फिर आग नहीं लगती। तो अब उन्हें कितना भी घस लो अब वो आग नहीं लगती। और एकदम अब जाके दीप रात के 12-1 बज गए, अपने रात तक खुद जाके दूसरी लकड़ियां फ्रेश ला नहीं सकता, सो बीच पानी पड़ गए, कच्चे हो गए। अब सूखना कब, सूखे तो फिर आग लगाना कब। अब जब क्या करता, जब नुकसान हो गया अब देखता, अब अंधेरा हो गया, अब उन्हें बैठा हुआ है हाथ खिला रहा, देखो तो अब ये सांप है बाजू, ये लकड़ी है, ये लकड़ी को 2 टुकड़े करूँ, ये सांप को लेके गले में डालूं, या इधर बाजू शेर आ गया, ये अंधेरे में सब तो उन्हें तो पहुंच जाता अपने शिकार के पास। तो अब हालत रह गई, अब उन्हें ही इज लेफ्ट इन द कंप्लीट डार्कनेस, मतलब अब ये जो डाउट की वजह से जो इन्हें हिदायत से दूर हो गया, अब उसने अल्लाह ताला उसको छोड़ दिया। कैसा छोड़ दिया, सो अब उसको कुछ दिखता नहीं, अब अल्लाह ताला उसको और कंप्लीटली अंधे बता दिए, क्योंकि हिदायत हटा दिया अल्लाह ताला, तो हम अंधेरे में है, तो अंधेरे में आ गए हम, तो अपने को कुछ समझ में आ रहा नहीं क्या करना, आगे बढ़ना नहीं बढ़ना, झाड़ पे चढ़ के बैठ जाना, झाड़ पे सांप आ जाता, क्या शेर नहीं आता मगर सांप आ जाता, अब मैं खाऊं क्या, तो ये क्या बोलते हैं बिच्छू आ जा रहा क्या नजदीक, नहीं तो सामने गोल्ड के कॉइन्स मिले गलती से, उसको छीने को डर हो रहा कि गोल्ड की कॉइन है या नहीं तो सांप के अंडे है, नहीं समझ में आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, दैट इज इक्वलेंट टू डार्कनेस। अंधेरे में आप फंसे जंगल में, तो मतलब आपकी हालत, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आगे बढ़ना समझ में नहीं आ रहा, किस डायरेक्शन में जाना समझ, वो हालत उन लोगों की जाती जो दीन से अब कम्प्लीटली हट गए, उनको समझ में नहीं आता। कभी दिल बोला तो पैसे जमा कर लेते, अपने बच्चों को कर लेते, बच्चों को पाल लेते, मगर बच्चों को वैसे ही पालते, फिर बच्चे जवान हो गए, इनको लात मार देकर घर के बाहर निकाल देते, क्योंकि तीनों तरबियत पे थे नहीं, तो बच्चों को तरबियत आई नहीं, इसके पैसा जमा कर बोल के मारवाड़ी के सिखा दिए, बोला अभी ठीक है अब अच्छा हमको सिखाया बोल के पूरा सीख गया होला, और वो पैसे होला के पैसे में दीवाने होते, बोले पावा के पैसा कहीं को डालना, चलो बुढ़े को घर के बाहर निकाल करके। तो तुम इस्लामिक टीचिंग नहीं दी, दुनिया की टीचिंग दी, तो वही तुम्हारे को रिटर्न पड़ जाती, तो इसको बोलते हैं अंधेरे में भटकना। तो ये है इस पैराबल का मीनिंग जो हम अपने लाइफ में इस्तेमाल करना। तो इसका अब हमारे लिए ये क्लास अभी खत्म होती है, फिर अपन मैं नेक्स्ट मीटिंग भेजता हूँ, ओके। अब इसमें मेरे को एक चीज ऐड करना है कि मतलब यकीन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी यकीन, ऐसा यकीन कि भाई ये दुनिया कुछ नहीं है, आखिरत ही सब कुछ है, ऐसा यकीन। और यकीन ऐसा रहना कि भाई कोई डाउट ही रहना आखिरत के बारे में, ओके, कि अल्लाह है, जन्नत है, दोज़ख है, खबर का अज़ाब है, अल्लाह के रसूल आए थे, किताब है अल्लाह की, इससे पहले भी जो किताबें आई थी वो सब पे यकीन 110% हमको यकीन है और कोई डाउट नहीं, ये बेशक 100% आ चला दिल में उतर जा। उतरने के बाद जब भी कोई हमको, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गरीब यतीम बच्ची की शादी है, या फिर किसी के यतीम के इलाज के पैसे है, या यतीम का कोई एजुकेशन है, ऐसा जब भी कोई मौका मिला तो मेरे ओपिनियन में उस मौके को वी शुड डिफाइन विद अ न्यू टर्म एज अपॉर्चुनिटी, न्यू वर्ड अपॉर्चुनिटी। Allah you should not wait for opportunity to come to you. You should go looking for opportunity. We should go looking. First of all, we should understand that it's an opportunity. मतलब ये काम नहीं है, समझे? ये मेरा जॉब नहीं है कि मैं 8 से 5 कर रहा हूँ, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है अल्लाह को राज़ी करने की। तो मतलब ये मेरे को वर्ड बहुत अच्छा लगता है, अपॉर्चुनिटी। मतलब हाँ भाई ज़कात देना है, हाँ हमें सदका करना है, ऐसा नहीं, अपॉर्चुनिटी हो, अल्लाह राजी होता है, ये एक चांस है, हो सकता है लास्ट चांस हो हमारा, इसको यूज करना है, और बेस्ट प्योर इंटेंशन के साथ और ये यकीन के साथ कि भाई यही चीज करने से अल्लाह राजी होने वाला है, हम जन्नत दे सकते। बेशक। तो ये मेरे को वर्ड बहुत पसंद आता, अपॉर्चुनिटी।
and you should be lucky that you have been given an opportunity. मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर opportunity मिली तो भाई आप lucky है, अल्लाह आपसे चाहते हैं, आपको मौका दिए. कई लोग को तो मुकमिल उम्मीद बना के छोड़े हुए अल्लाह ताला नहीं भाई फैंस के सामने बीन बजाने का हाल है. भाई आपको चाहते अल्लाह ताला, इससे आपको अपॉर्चुनिटीज मिले, मेरे को नहीं मिले, हमारे को मालूम नहीं हुआ, खटका आया आपके पास, वाह भाई आप सुन रहे आप, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी गाइड करे. ये एक है, यू शुड फील लकी कि अल्लाह ताला आपको अपॉर्चुनिटी दिया है प्रैक्टिस. और एक शेख साले उस्माइन का एक बार मैं लेक्चर सुन रहा था, तो उन्होंने बोले यकीन के ऊपर कि भाई आपको यकीन है नहीं है, उसका एक्चुअल एग्जांपल क्या है बोलते. फॉर एग्जांपल आप एक बिल्डिंग में है और वो बिल्डिंग को आग लगती है और आप बिल्डिंग में खड़े और कोई बंदा आके बोला भाई बिल्डिंग की आग लग गई, और आप पलट के देख रहे बिल्डिंग दिख रही मगर आप उधर ही खड़े हुए, और बंदा बोल रहा भाई बिल्डिंग में आग लग गई, तो मगर आप हिल रहे नहीं, आप वैसे खड़े हुए हैं. तो इसका मतलब ये है कि आप जो बोले वो बात समझ में नहीं आई या तो उन्हें बात पे यकीन नहीं करा. अगर उन्हें यकीन करते था तो उन्हें भागता ना बिल्डिंग. अगर उन्हें नहीं भाग रहा, उन्हें वहीं खड़ा हुआ है, तो मतलब एक्चुअली उन्हें वो बात को बिलीव नहीं करा फॉर वॉट एवर रीजन, उसको यकीन नहीं है इस बात पे, वरना उन्हें एक्शन जरूर लेता था. तो अगर तुम्हारे को भरोसा है कि क़यामत के बाद में जिंदगी की है, क़यामत के बाद में जहन्नुम की आग आपका इंतजार कर रही है, वहाँ पे फरिश्ते बैठे हुए हैं, लकड़ियाँ स्पीयर्स ले लेके आपकी बैंड बजाने को, और आप लिटरली उसको बिलीव करते, तो फिर आप उस हिसाब से एक्शन करते. अगर आप एक्शन नहीं कर रहे और ये बात बोलने से पहले भी वैसी सुंद बैठे हुए थे, और ये बात बोलने के बाद में कोई आके आपको ये बात बोलने के बाद में आप वैसी सुंद बैठे हुए, तो मतलब बात पे आपको यकीन नहीं. क्योंकि अगर यकीन हुआ तो हरकत हुए तो एक्शंस होते, चाहे वो गरीब की शादी हो, चाहे कुरान पढ़ना हो, या किसी मजलूम को बेइज्जती से बचाना है, या नहीं तो कोई आपको कमजोर को सता रहे ऑफिस में, तो आप उनके लिए खड़े हुए. बट वॉट एवर वे, चैरिटी इज वन ऑफ दी वे एंड वन ऑफ द टफेस्ट वे. क्योंकि हम फ्री की एडवाइस देते हैं मगर जेब में से 2 दमड़ी पैसा निकालना तकलीफ, क्योंकि वी लव आवर मनी लाइक एनीथिंग बिकॉज वी वर्क फॉर इट. फुकट में बातें करना, लेक्चर दे देना, या नहीं तो फुकट में मैं तेरा प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, उधर से इधर जाके थोड़ा फ्री का मुंह का एडवाइस बोलते नहीं, तो उसमें कुछ पैसे जाते नहीं. तो इसके लिए शोएब जो है एक्सरसाइज करते चैरिटी, क्योंकि वो आपका दर्द है, पेट में से दर्द निकाल के देखना है किसी को, तो वहाँ पे इंसान जो आगे पीछे हो जाता. तो खैर वो तो एक्सट्रीम है, और उसके अलावा भी जो एक्शन आप कर रहे दीन के खातिर, इस्लाम के खातिर, अल्लाह को राजी करने के, अगर वो एक्शन आप पहले के जैसे वैसी है, तो मतलब आप लिटरली इस बात को यकीन नहीं करें कि भाई जन्नत और मरने के बाद में जिंदगी है, तो फिर एक्शन है. एक्शन नहीं है, सुंद वैसे खड़े हुए है, बिल्डिंग आग पे लगी, तो मतलब लिटरली वो सामने वाले की बात क्या आता है नहीं करे फॉर वॉट एवर रीजन, या वो आपको आग लगी तो उसकी गर्मी आपको महसूस नहीं हुई. अगर उसकी गर्मी महसूस हुई तो भाग तो बिल्डिंग छोड़ के कूद जाते, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर से भी कूद जाते कि भाई आग से तो निकलना बोल के. जब तक धुआं आ जाता और पूरे कमरा जो है धुआं से बच जाता, तो भर जाता, और आपको जो है सांस नहीं लेके बेहोश होते, जब भाग के क्या फायदा. उससे पहले भी आप बोला और आपको हल्का सा दिख रहा निगाहों से कि थोड़े थोड़े स्पार्क्स आ रहे और थोड़ी सी कार्बन मोनोऑक्साइड की स्मेल आ रही, तो जब नहीं मेरे को कंफर्मेशन होना, तो आता कंफर्मेशन, और एक 15 मिनट में पूरा कमरा भर जाता धुआं से. उसके बाद में पूरे लोग स्टेयरकेस पूरे भर जाते, तो भागना चाहते भी नहीं भागते. वो बोलते भी ना कि भाई इंसान का एक नेचर है कि जब तक जो चीज उन्हें आँख से देखता नहीं उस पे उसको 100% यकीन नहीं होता. मगर हमारा मुसलमान का ये मतलब ऑपोजिट है, मतलब थोड़ा अलग है हम लोग, कि हम नहीं देखे लेकिन हम 100% इस बात पे यकीन करना पड़ता. राइट. हाँ शेख बसाएं बोले, मतलब जब तक, क्योंकि नॉर्मल इंसान का आई थिंक वो नेचर है कि भाई जब तक उन्हें सामने अपनी आंखों से देखता नहीं वो चीज पे बिलीव नहीं करता. लेकिन एक मुसलमान की आंख अलग रहती, आंख, दिमाग और दिल बगैर देखे के 100%, 110%, 20% यकीन है कि भाई हाँ जन्नत है, दोज़ख है, आखिरत है, ज़बर का अज़ाब है, अल्लाह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, बाकी पूरे रसूल थे, अल्लाह की किताबें आई थी, सब पे हमको 100% यकीन है इंशाअल्लाह. हिसाब किताब भी होगा जैसा तुम बोले हमारे एक्शंस में फिर रिफ्लेक्ट होना डेली, यानी मैं फजर को डर के उठना, चमक के उठना, अल्लाह की मोहब्बत में उठना. राइट. मैं दिन भर क्या सुबह मेरी डीलिंग्स कैसी है, मेरे नीचे जो काम कर रहा हूँ उसके साथ मेरी डीलिंग कैसी है, मैं उससे बात करूँ, डीलिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को अल्लाह याद आना, क़यामत याद आना, दोज़ख याद आना. अब दोज़ख के ऊपर एक बात बोल दूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हदीस में बोले कि
ताला ने मुझे खबर का अजाब सामने दिखा दिया और मैं देख लिया। तो आपको भी एक फीलिंग